السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم۔ محترم حضرات، مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ درس قرآن پر بات کریں۔ ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ اگر آپ میری بات کو واقعی میں سنجیدگی سے سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے پورے چانسز ہیں کہ اگر جیسے میں جو باتیں کر رہا ہوں اگر آپ کریں گے تو ایک ہفتے میں آپ اپنے دل کو بدل سکتے ہیں۔ بہت آسانی سے دل کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، چینج ہو سکتی ہے۔ تو آپ میری ایک بات بہت غور سے سنجیدگی سے سنیں۔ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم اگر یاد کرو گے اس حال میں کہ تم مومن ہوگے تو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ نہیں کہا ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ عموماً اللہ تعالیٰ جب کوئی ایسی ایڈوانٹیج کی بات قرآن کریم میں کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے، کنڈیشنل ہوتی ہے۔ جیسے کہتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے کہتا ہے کہ انتم العالون، آگے کنڈیشن لگاتا ہے ان کنتم مومنین، تم اس دنیا میں سپر پاور بن سکتے ہو، شرط کیا ہے کہ تم مومن ہو۔ تو اس کو کیا کر دیا گیا، کنڈیشنل۔ یہی وجہ ہے، میں اگر اپنی بات سمجھا پایا آپ لوگوں کو تو بڑی بات سمجھایا۔ جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اور دل کی کیفیت سے یاد کرتا ہے تو پروردگار عالم کیفیت کی بنیاد پر آپ کی بات کو مان لیتا ہے، بھلے آپ اس کے کچھ دن کے بعد اس کے خلاف کام کرنے والے ہوں۔ دیکھیں میری بات بہت سنسر ہے ورنہ باؤنسر جائے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے نا۔ ایک آدمی دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آج سے یہ غلط کام نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر یہ جانتا ہے کہ کل یہ پھر یہ کام کرے گا، جانتا ہے کہ نہیں جانتا، لیکن اس کے بعد آپ کی دل کی کیفیت کی بنیاد پر وہ آپ کی بات مان لیتا ہے، کیونکہ اس نے کنڈیشن نہیں رکھی ہے۔ اگر دل کی کیفیت پر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرے تو 50 نہیں 90% لوگوں کی توبہ ہی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ توبہ کرنے والا اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر پتہ چلا 1 مہینے کے بعد وہی گناہ پھر کیا کر دیتا ہے، ریپیٹ کر دیتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ اپنے اللہ سے کہتا ہے اس وقت اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ میں کروں گا۔ لہذا دل کی کیفیت کی بنیاد پر رب نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا، اپنے علم کی بنیاد کو مقدم نہیں رکھا، آپ کے دل کی کیفیت کو مقدم رکھا، کیونکہ اللہ نے کہا کیا تھا کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بات میری سمجھے؟ آپ کو قرآن کی ایک مثال دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ایک آیت کیا مطلب اس مضمون کی کئی جگہ آیت ہے کہ جب کفار
समंदर का सफर करते हैं तो अचानक फंस जाते हैं। कहाँ? समंदर में। अब समझते हैं कि कश्ती डूब जाएगी, तो उस वक्त अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह अब आप ही हैं, वो जितने को हम मानते थे ना वो कुछ नहीं कर सकते, अब आप बचा लीजिए। पूरी कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूं, अल्लाह मुझे बचा लीजिए और बस आप बचाने वाले हैं। अल्लाह ताला कहता है कि उनकी उस कैफियत की बुनियाद पर, काफिर हैं सब, नोट रखिएगा, काफिर हैं सब, कहता है अल्लाह ताला कि मैं उनकी दुआ कबूल कर लेता हूं, जब वो साहिल पर पहुंचते हैं तो फिर मेरा इनकार कर देते हैं। यानी 15 मिनट के बाद भी वो अपनी उस कैफियत के खिलाफ काम करते हैं। वो अल्लाह जो सब कुछ जानता है, क़यामत तक का जानता है, उसके बावजूद भी जिस वक्त उसने याद किया उस कैफियत को उसने सामने रख करके उसकी दुआ को कबूल कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा क्या था कि तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। बात पे अपने समझा पाया आपको? लिहाजा ये आयत एक बहुत बड़ी नेमत है। और अगर मेरी तकरीर से आपके दिल में ये आया ये तो अच्छा है यार मौलाना साहब जो बात कह रहे हैं, अल्लाह को याद कर लेंगे, बाद में पाला पलट जाएंगे, तो अगर उसी वक्त ये कैफियत हो जाएगी तो फिर कैफियत ही नहीं पैदा हुई। तो एक जुमले में बात कर रहा हूं कि रब्बे जुल जलाल उसके याद करने में आपकी हमारी कैफियत को मद्देनजर रखता है, अपने इल्म की बुनियाद पर फैसला नहीं करता है। बात समझे मेरी? अपने इल्म की बुनियाद पर अगर फैसला करे तो बहुत से लोगों की फाइलें पेंडिंग में रहेंगी, कभी कुछ नहीं होगा। तो इस आयत की आप हैसियत को समझने, और इसमें यह भी आपको एक बात बताऊं, हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे या समझ में ना आवे, ये जो अल्लाह को याद करेगा इसके लिए काफिर भी याद करेगा तो भी परवरदिगार आलम के बड़े चांसेस हैं कि वो उसकी भी बात मान लेगा। क्यों? अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था? अब्दुल मुत्तलिब की दिल की कैफियत ये थी कि उसने बादशाह अबरहा से क्या कहा कि जिसका घर है वो हिफाजत करेगा। उस वक्त हालत कुफ्र में थे, हालत कुफ्र में थे, उनको शिर्क की हालत में ही कहा गया, कुफ्र की हालत में ही थे, लेकिन दिल की कैफियत इतनी टॉप क्लास की थी कि परवरदिगार आलम ने उनकी बात को मान लिया और अपने घर की हिफाजत कर लिया, जबकि ईमान वाले ने दुआ नहीं की थी। गैर ईमान वाले ने तो कहा था कि अल्लाह तेरा घर है, तू बचा लेना, मैं अपने ऊंट की हिफाजत करूंगा, तू अपने घर की हिफाजत कीजिए। लिहाजा दिल की कैफियत की बुनियाद पर अगर वो काफिर की बात को, और यही वजह है कि कितने काफिर की दुआ कबूल हो जाती है, आप हैरत करते हैं कि अल्लाह का इनकार करता है, कैसे दुआ कबूल हो गई? वो दिल की कैफियत की बुनियाद पर उसकी बात मान ली गई है। बात समझे मेरी? नंबर 1। नंबर 2, जब आदमी ये जो जिक्र है, जिक्र का मतलब क्या होता है? जिक्र 2 तरीके का होता है। एक जिक्र होता है ओरली, जबान से जिक्र करना, आप कहते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जबान से जब जिक्र करता है तो 2 प्रॉब्लम के चांसेस हैं। अगर 2 प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जिक्र जबान से जबरदस्त चीज है, लेकिन बहुत कम लोग इस दुनिया में हैं कि जो जिक्र जबान से करें और अपने आप को उस प्रॉब्लम से सेव कर ले, ये नहीं कर पाते। वो 2 प्रॉब्लम क्या है? मिसाल के तौर पर हम जितने हमारे भाई बहन हैं, भाई खासकर, सब बड़े हाईली क्वालिफाइड, कोई इंजीनियर साहब है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है, कोई फलां है, कोई अमेरिका में है, 8-8, 9-9 लाख रुपए सैलरी है, मैं मौलवी। अब मैं
जिक्र करता हूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और फिर बैठ करके मैं सोचता हूं कि अगर मेरा भी दिमाग अल्लाह ने बहुत दिया था, मैं भी अगर इंजीनियर बन जाता, मैं भी अगर सीए बन जाता, मैं भी डॉक्टर बन जाता तो खूब नोट कमाता। और मैं सुभान अल्लाह भी पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह का मतलब क्या होता है कि अल्लाह ऑल डिसीजन, जो भी आप फैसला कर रहे हैं सब सही हो रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। आपने मुझे मौलवी बनाया है, यही बेहतरीन फैसला है। अगर ये कहने वाला, सुभान अल्लाह पढ़ने वाला, फिर सोच रहा है कि भाई हमारा इंजीनियर होकर कमा रहा है, 6 लाख 8 लाख तनख्वाह है उसकी, मैं भी अगर होता तो कमाता, इसका मतलब मैंने अपने जिक्र को डिलीट कर दिया। आप सोचते हैं कि यार इतना तस्बीह पढ़ रहे हैं और कहां जा रही मालूम ही नहीं हो रहा है। नहीं, कितना अच्छा टाइपिस्ट हो, कितनी अच्छी फाइल बनाए कंप्यूटर पे, लेकिन एक छोटा सा बटन डिलीट का दबा देगा, पूरी फाइल क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ये क्या करता है, जो जबान से जिक्र करता है वो हकीकत में डिलीट करता रहता है। अगर आप डिलीट ना करें तो फिर ये जिक्र वो है जिसके बारे में हदीस में आता है कि जमीन आसमान के बराबर नेकी लिखी जाती है सुभान अल्लाह की। वो शर्त क्या है, वो सुभान अल्लाह ऐसा जो डिलीट। अब बात समझ गई कि क्यों प्रॉब्लम कहां हो रही है हमारे जिक्र की। ये जिक्र बिल लिसान में अगर डिलीट नहीं आप कर रहे हैं तो आप बेहतरीन जाकिर हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जिक्र की एक कंडीशन है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिक्र बंदा करे लेकिन गाफिल दिल से नहीं करे, कल्बिन लाहिन नहीं होना चाहिए। कल्बिन लाहिन का मतलब क्या होता है, आप देखें सुबह के वक्त स्पेशली बहुत से लोग हैं बैठे हुए हैं, तस्बीह पढ़ रहे, झोंका भी मार रहे हैं, देखा ना, सोते रहते हैं। फिर ये जो कल्बिन लाहिन है ना, इस जिक्र की कोई वैल्यू अल्लाह के दरबार में नहीं ठहरती। हदीस में क्या आता है कि आप, अच्छा ईमानदारी से बताइए, जो दिल की कैफियत को जानता हो उसके सामने हम अगर गाफिल दिल से, अभी किसी कोई आपसे मुसाफा करे और मुसाफा करते वक्त आप अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर करके मुसाफा करें तो आपको खराब लगता कि नहीं लगता है। आप भी चाहते हैं कि यार जिसको मुसाफा कर रहा सामने मुतवज्जे तो हो, ये बंदा उधर मुसाफा, इधर मुसाफा कर रहा है, उधर सर। पता चला कि जिक्र में दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, दूसरी प्रॉब्लम होती है कल्बिन लाहिन, गाफिल दिल। क्या होता है, अभी आप तकरीर सुनने बैठे हैं, एक तबका ऐसा होता है तकरीर सुनता है और सोता है, इसको कभी भी ये जिक्र काम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि अल्लाह ताला की जो सिफत है, जो अल्लाह की जात है ना, वो इतनी बड़ी जात है अल्लाह कि वो इस बात को पसंद नहीं करता कि मेरी बात इसके सामने करे, मेरी बात इसके दिल पर असर भी कर जाए और ये हमसे गाफिल भी हो तो परवरदिगार आलम इसका कोई इफेक्ट नहीं डालता है। बहुत से लोग हैं हमको फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते, मौलाना साहब मैं आपकी तकरीर रोजाना सुनता हूं और रात में लगा लेता हूं और सुनते सुनते सो जाता हूं। एक बड़ी तादाद है। कभी आप गौर से देखें, एक दिन आप अपना एक्सपीरियंस खुद करें कि आप किसी की तकरीर सुन रहे हैं और सुनते सुनते सो गए हैं। जब आप जगे तो उस वक्त आप एक मरतबा गौर करें कि आपने कुछ सुना है, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, 1% में नहीं याद रहेगा। जो आप अपने तौर पर मुतमईन हैं कि मैं मौलाना की तकरीर सुन रहा हूं, बड़ा काम किया हूं, आपने कुछ नहीं किया है। वजह क्या है कि रब्बे दुल जलाल को यह पसंद नहीं है कि उसकी बात ऐसी हालत में हो, वो उन बातों को दिलों से क्या करता है, निकाल देता है। तो जिक्र
बिल्लिसान जो होता है, जो जबान से जिक्र होता है, उसमें दो प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? एक कि जिक्र करता है और डिलीट करता रहता है। दूसरा क्या करता है? जिक्र करता है और गाफिल दिल से किसको याद करता है? अल्लाह को याद। ये दोनों प्रॉब्लम आपके जिक्र को क्या कर देती है? माइनस डाल देती है। नमाज के बारे में अल्लाह ने कहा कि अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, लोगों नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए। सबसे बड़ा जिक्र क्या है? नमाज है। आप नमाज पढ़ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि चेंजिंग नहीं आ रही है। हो रहा है ना, एक बहुत बड़ा तबका है नमाज पढ़ता है, बट देयर इज नो चेंज, कुछ भी अंदर से बदल ही नहीं रहे हैं। आप कभी इस पर गौर करें, उसमें हुआ क्या है कि नमाज में मेंटली आप आउट रहे, फिजिकली मस्जिद में रहे, मस्जिद में है, बाजार भी मौजूद है। ये दोनों जो चीजें नमाज में हो रही हैं, ये वही बात हो गई कि जिक्र किया गया अल्लाह की गफलत के साथ, लिहाजा नमाज अपने असरात आपके ऊपर नहीं, कुछ नहीं दिखलाएगी। लिहाजा जिक्र में ये दो चीजें अगर नहीं हैं तो फिर जिक्र कितना असर करता है। आपको एक बात कह रहा हूं, और आज के पहले कभी मैंने नहीं कहा, ये पहली मर्तबा कह रहा हूं। हालांकि मुझे तकरीर करते हुए तकरीबन 40 साल होने को हो रहे हैं। ये जो बंदा जिक्र करता है ना, तो आपको मालूम है कि अगर मुंह सूखा हो, कभी कभी होता है ना मुंह सूख जाता है मुकर्रिर साहब का, तो फौरन पानी उठाते हैं पीते हैं, या कभी आपकी जबान में जो लुआब कहते हैं, ये लुआब की बुनियाद पर ही जबान चलती रहती है। अगर लुआब बनना बंद हो जाए, अगर लुआब न हो, तो आप बात नहीं कर सकते। अब बंदा जब जिक्र करता है, देखिए होता क्या है, जब जिक्र करते हैं, अब मिसाल के तौर पर आप सिर्फ कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी जिक्र कर रहे हैं, तो जबान जो लुआब है ना, वो लुआब बार बार क्या होता है? रिपीट होता है। कभी इसका आप तजुर्बा करके देखें, वो लुआब जाता है अंदर ही। थूकते तो है नहीं आप? थूकते हैं? नहीं थूकते। लुआब अंदर अंदर वो दिल पे जब जाता है ना, तो अल्लाह के जिक्र का असर पे आदमी के दिल को 100% नरम कर देता है। और जिन लोगों को ये शिकायत है, मौलाना साहब दिल मेरा बहुत सख्त है, कुछ महसूस नहीं होता, जिक्र नहीं कर रहा है बंदा। अगर वो जिक्र करे, आप यकीन जान लें, मैं एक मौलवी का, छोटे से मौलवी का तजुर्बा करके देखें, कितने भी आप सख्त से सख्त तरीन दिल होगा और आपका दिल नरम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े स्कॉलर, बड़ी मालूमात, लेकिन उनकी जिंदगी में चेंजिंग, तकरीरें करेंगे तो ऐसा लगेगा कि और तो नॉलेज का पूरा अंबार है। एक साइंटिस्ट बात करता है तो गैलेक्सी के बारे में, चांद के बारे में, लेकिन उनकी सारी गुफ्तगू होने के बाद वो रब की तरफ जा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जिक्र ये करते नहीं है। अगर जिक्र करते तो इनके दिल में वो कैफियत होती और दिल चेंज हो जाता। जिस आदमी को भी शिकायत है कि मैं मौलाना साहब नहीं बदल रहा हूं, एक मर्तबा आप मेरी बात आज जाकर के सोचिएगा कि आप रोजाना कितना जिक्र करते हैं। और हो सकता है कि आप बड़े नॉलेज एबल आदमी हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े स्कॉलर हो, लेकिन चेंज नहीं होंगे आप, क्योंकि जो लुआब था, जो थूक था ना, वो अल्लाह के जिक्र के साथ रिपीट नहीं हुआ कि दिल में जाए, ज्यादा दिल कभी भी नहीं बदलेगा। बात नहीं समझे? लिहाजा जिक्र बिल लिसान बड़ा अफजल है। अगर ये दो चीजें ना हो, फिर वो लुआब क्या करता है? रिपीट होते 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 अंदर जा। आपने देखा है कि कभी कभी लोग जब किसी पर दम करते हैं या पानी पे दम करते हैं, जिस वक्त वो पढ़ते रहते हैं वो बोलते नहीं है, पहले दम कर देते फिर बात करेंगे। देखा है?
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी वही कि वो लुआब जो रिपीट हुआ था जिक्र के साथ, आपके फू कर देने से वो उसके बाहर उस पानी में जाना चाहिए या उस शख्सियत पर। अगर आप बोलेंगे ना तो फिर वो कैफियत चेंज हो जाएगी। ये कहीं कुरान हदीस में नहीं लिखा है, ये प्रैक्टिकली जिंदगी है। इस बुनियाद पर वो खामोश रहते हैं और बोलते नहीं। ये होता है जिक्र बिल लिसान। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है वो जिक्र बिल कल्ब है। जिक्र बिल कल्ब क्या होता है? जब कोई ऐसा लफ्ज आता है तो आप समझते हैं बहुत बड़ा सूफिया है। मैं कोई सूफी नहीं, मैं आम आदमी हूं। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि एक तो पहला नुस्खा बताया दिल को नरम करने का। दूसरा, अगर ये चीज अख्तियार कर लेंगे जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं, आप आज जो बैठे हुए हैं ना, एक हफ्ते में ऐसे नहीं रहेंगे, आप चेंज हो जाएंगे, 100% चेंज हो जाएंगे। वो क्या है? जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि यूज करो कुल्ला अहयानिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 घंटे क्या करते थे? जिक्र करते थे। अच्छा, 24 घंटे जिक्र कैसे हो सकता है? भाई आदमी खाना भी खा रहा है, बीवियों के साथ भी है, घर में भी है, ये 24 घंटे जिक्र क्या होता था? इसमें जितने लोग बैठे हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, आप मेरी बात कर, किसी आदमी ने बैठने से पहले ये सोचा है कि ये मौलवी साहब अल्लाह रसूल की जो बात कहेंगे हो सकता है मेरे दिल में उतर जाए, ये आपने सोच करके बैठे हैं? आप नहीं बैठे, एक बड़ा तबका नहीं बैठा। ये अगर आप ये इरादा करते कि यार ये मौलाना आए हैं, चलो देखते हैं कि बात क्या, आप इसलिए बैठे हैं कि नहीं हो सकता बड़ी नॉलेज वाली बात करते हैं, बड़े पॉइंट से बात करते हैं, ये सब कभी आपको नहीं बदलेगा। बैठने से पहले अल्लाह को याद करना था। क्या याद करना था? कि अल्लाह रसूल की जो बात होगी अल्लाह मेरे दिल में उतार देना, मैं अमल उस पर करूं। इस नियत से अगर बैठेंगे तब नतीजा क्या निकलेगा? आप असल जाकिर हैं। इसी का नाम जिक्र बिल कल्ब है, उससे हम महरूम रहे। एक मौलवी बैठता है, किसी मौलवी की तकरीर में एक तबका बैठता है, आप देखें ज्यादातर मौलवी नहीं बैठेंगे, मौलवी नहीं बैठेगा। मौलवी के बैठने की 3 वजह होती है। पहली वजह यह होती है, अगर उस मौलवी को यह मालूम हो जाए बैठने वाले को कि ये जो बैठा हुआ है ये इतने पॉइंट की बात करता है कि मैं इसको दूसरी जगह पर उसको नोट करके डिस्प्ले कर सकता हूं, तब तो वो बैठेगा। दूसरा तबका, चलो बैठते हैं, देखते हैं ये गलत क्या बोलते हैं। तीसरा तबका बैठता है कि चलो अल्लाह रसूल की बात होगी, अमल करेंगे। वो 2% लोग हैं सिर्फ। 98% उस पहले और दूसरी कैटेगरी में है, या तो बैठेंगे नहीं, अगर बैठेंगे तो इस नियत से बैठेंगे, लिहाजा मौलवी की तकरीर मौलवी के ऊपर बहुत कम असरअंदाज होगी। ये अल्लाह को याद करने का तरीका ये अख्तियार कर लें। बिज़्ज़त कोई भी काम करें, मिसाल का अभी उठकर जाएंगे, अभी खत्म होके चले जाएंगे। हो सकता है किसी को बच्चे को लेके जाना हो, बीवी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि हम जब डॉक्टर के पास जाने लगे तो हम ये नियत करके जाएं कि अल्लाह ताला मैं इस डॉक्टर के पास अपने बच्चे को दिखलाने जा रहा हूं और इसको कोई ऐसी दवा ना लिखवाइएगा जो मेरे बच्चे के लिए नुकसानदेह हो। आपने कभी सोच कर गए हो डॉक्टर के पास? नहीं, एमडी है, फलां है, स्पेशलिस्ट है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं वो भी दे, लेकिन अल्लाह को याद करके डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। अगर अल्लाह को याद करके जाते कि अल्लाह ताला इस डॉक्टर को नब्ज पकड़ते ही अल्लाह मेरे बच्चे के बारे में इसको सही मशवरा दे दे, तो आप जाकिर हैं। डॉक्टर, अगर डॉक्टर मुसलमान है और वो ये सोच ले कि अल्लाह इस पेशेंट को आपने मेरे पास भेजा है, मैं कोई ऐसी दवा ना लिखूं
جو بچے کو نقصان پہنچائے، یہ دونوں ذاکر ہیں، اسی کا نام ذکر بالقلب ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر یہ ایوری ایکشن، ہر عمل پر اگر یہ نیت کرنا آپ شروع کر دیں، آپ بدل جائیں گے کہ نہیں؟ ایک ہفتے میں بدل جائیں گے۔ ہم اللہ کو یاد کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ مصلی بچھایا جائے گا، وضو کیا جائے گا، تسبیح لی جائے، وہ بھی ذکر کی ایک شکل ہے، لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں اس کے لیے نہ ٹائم ہے، نہ اس کے لیے مصلی کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، 24 گھنٹہ رب ذوالجلال کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ ایک لڑکا نوجوان ہے، اسکوٹر سے جا رہا ہے، بغل سے ایک لڑکی اسکوٹی سے گزری، آپ نے جب ایکسیلیٹر کو نیچے دبا کے بڑھایا تو آپ نے اس وقت اللہ کو آپ نے بھلایا۔ ایک بچہ سوچا کہ نہیں دیکھیں گے، پھر اسی وقت یاد آیا نہیں، ہمارا اسلام، ہمارا اللہ، ہمارے رسول نے منع کیا، اس نے ایکسیلیٹر کو نیچے ڈاؤن کر دیا۔ یہ ویسے ہی ذاکر ہے جیسے مصلی پہ بیٹھا ہوا بندہ تسبیح پڑھ رہا ہے، دیر از نو ڈفرینس۔ اور اس کے لیے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف آپ۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے، اس وقت کوئی پولیس والا کھڑا تھا آپ کے پاس؟ نہیں۔ کوئی دیکھنے والا تھا آپ کے پاس؟ نہیں۔ صرف اللہ ہے اور آپ ہیں، بقیہ کوئی تیسرا نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہی وہ سیکنڈ ہوتا ہے جو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ ہیوی پکڑتا ہے۔ یہ تو ہم روزہ نماز جو کرتے ہیں اس میں تو جانتا ہے تم کتنے پرسنٹ کیا کر رہے ہو، اندر ہو، اور کتنے پرسنٹ مسجد باہر ہو۔ یہاں تو نمبر کٹتا ہے، 100% نماز کا نمبر تو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، لیکن وہ ایکسیلیٹر والے کو 100 نمبر ملتا ہے، اس کا ایک نمبر نہیں کٹتا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جو گیا ہے ایک نمبر نہیں کٹا ہے۔ یہ جتنی بھی ظاہری عبادت ہیں سب میں نمبر کٹنے کے چانس ہیں، لیکن اللہ کو جس انداز میں بتا رہا ہوں اگر آپ یاد کریں تو کبھی بھی ایک نمبر نہیں کٹتا ہے۔ آپ بچے کو ٹیوشن کرانا ہے، جتنی بھی مثال آپ نے ہر لمحے کی مثال لیں، بچے کو ٹیوشن اس ٹیچر کے پاس کہ اللہ تعالیٰ میں اس اسکول میں داخل کرا رہا ہوں، اس کی جو اچھائیاں ہیں اے اللہ یہ میرے بچے کو ہے، اس اسکول سے جو فتنہ ہے اس سے میرے بچے کو بچا لیں۔ آپ ایڈمیشن نہیں کرانے، آپ ذاکر ہیں، آپ ذکر کرنے والے ہیں۔ اگر یہی ہر چیز میں تھنکنگ شروع ہو جائے تو ہم ایک ہفتے میں جو دل لے کر آپ بیٹھے ہیں وہ ایک ہفتے میں آپ نہیں رہیں گے۔ اس کے لیے عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی بات ہے کہ یوز کرو کل احیان، کہ 24 گھنٹے ذکر کرتے تھے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ جوان لڑکی کہہ رہی ہے اس کی ماں کی دودھ میں پانی ملا دو، وہ کہتی ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوانی یہاں کہاں امیر المومنین ہے، وہ کہتی ہے نوجوان لڑکے لیکن امیر المومنین کا جو امیر ہے یعنی رب وہ دیکھ رہا ہے نا، یہی اصل ذاکر ہے۔ اور اس کی ویلو کتنی ٹھہری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں کہ کٹیا میں رہنے والی کو امیر المومنین نے اپنے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے رشتہ بھیجا، کیونکہ ان کو ذاکرہ مل گئی۔ یہ ذاکرہ ہے، اس کے لیے مصلی بچھایا، اس نے کچھ نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے اللہ کا خوف جو طاری ہوا نا وہ اصل اللہ کو یاد کیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اسی بات پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا 30 منٹ ہو رہا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اس عورت فاحشہ عورت کو جس نے کتے کو پانی پلایا اس کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ ایک لمحے کے لیے خوف آیا تھا کہ میرے رب کی یہ مخلوق ہے، جیسے میں پریشان ہوں یہ بھی پریشان ہے۔ صرف اتنی کیفیت کی بنیاد پر زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں کبیرہ سمیت سب رب ذوالجلال نے معاف کیا۔ اس کو اصل کہتے ہیں ذکر بالقلب، اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں۔
بات بڑی سمجھے، یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک